नमस्कार। जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति 2024 चल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी पोखरण फायरिंग रेंज में राफेल गरज रहा है। राफेल विमान से 2200 किलो बम का लक्ष्य रखा गया है दागने का। फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान मौजूद हैं, परिवहन विमान मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां भी अपनी परिचालन क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ बल के जवान विशेष अभियानों में अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सरहद पर वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के गवाह बन रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हरि कुमार, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी भी शामिल हैं। लगभग 5 बजे यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। वायु शक्ति 2024 दिन से रात तक लगातार ये वायुसेना का अभ्यास चलेगा। Aircraft capable of undertaking covert special operations against enemy ground forces and serve troops behind enemy lines on unprepared surfaces. And on the screens placed in front of you, you can see the live feed of the C-17 coming in for carrying out an assault landing. दर्शकों, भारतीय वायुसेना के दक्ष पायलट न केवल अपनी वायु सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर अपनी सेनाओं और उनके साजो सामान को भी हमले के लिए पहुंचाने में काबिल हैं। Today, the C-130 will be doing an assault landing, which means the aircraft will be landing on an unpaved runway. Here comes the C-130, call sign Bali, emerging from behind the grandstand. Let us all welcome Bali with a huge round of applause. And I'm sure you all remember the Rafale aircraft, which had earlier destroyed an enemy aircraft. It has now been assigned the role of combat air patrol, wherein it is flying at a height of 2,000 feet, so that the C-130 lands without any enemy aircraft interference. The C-130 will now be carrying out a low-altitude, high-speed tactical approach. You can see the aircraft is turning right to position itself to carry out an assault landing to insert Garud commandos for securing the runway. आज का यह प्रदर्शन असॉल्ट लैंडिंग का है। इसके दौरान यह विमान हवाई पट्टी पर कम दूरी में उतरकर दुश्मन के इलाके में गरुड़ कमांडोज को दाखिल कराएगा तथा थोड़ी देर बाद पुनः असॉल्ट लैंडिंग स्ट्रिप से दूसरे छोर से कम दूरी से ही उड़ान भर लेगा। Please keep looking towards your right. The aircraft is on short finals coming in for landing on the advanced landing strip. And the aircraft has touched down. Watch as it decelerates. Engulfed in a bowl of dust as it decelerates. Look at the ram doors opening. Keep your eyes glued to the aircraft and watch out for the Garud commandos who will swiftly and steadily jump off. Every Garud commando has his eyes scanning the vicinity for any threat around the airfield. The Garud commandos are trained for extensively for these kind of operations. The special forces spread out alongside the runway, securing it. Today, the Garuds are capturing and securing the runway for further air-landed operations, wherein a Chinook helicopter will fly in 2 M777 guns. प्रहार से सुरक्षा के अपने उद्देश्य वाक्य को चरितार्थ करते हुए गरुड़ कमांडोज विमान से बाहर आ चुके हैं एवं विमान को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। विमान के उड़ जाने के पश्चात दुश्मन की जमीन पर दिए गए अपने खतरनाक अभियान को भी पूरा करेंगे। भारतीय वायुसेना की यह विशेष टुकड़ी स्क्वाड में काम करती है। दूर स्थित अपने लक्ष्य को कमांडो की एक छोटी टुकड़ी, जिसे ये ट्रैक कहते हैं, फास्ट अटैक व्हीकल की मदद से कुछ ही समय में लक्ष्य पर पहुंचकर उसे बर्बाद कर देंगे। The ramp has closed and watch as the aircraft accelerates to reach the other end of the assault strip. C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान एक विशेष विमान है जो न केवल इस प्रकार के अभियानों को करने में सक्षम है, बल्कि
विभिन्न मानवीय आपदा राहत एवं बचाव अभियानों में भी प्रयोग में लाया जाता है। The C-130J Super Hercules aircraft has tremendous flexibility in landing and executing not just special operations like these, but also tactical airlift capability and reach during humanitarian assistance and disaster relief, also called HADR operations. The possibilities of innovative employability of this versatile platform for a variety of operations is truly endless. देवियों एवं सज्जनों, हमारा C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान अपने विशालकाय आकार के साथ दुश्मन को मानो कह रहा हो, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी परीक्षा है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। The C-130J is now positioned for a short field takeoff. The aircraft will open full throttle and notice the short amount of distance that the aircraft will take to get airborne. और इसके साथ विमान तैयार है पुनः आसमान की बुलंदियों को चूमने के लिए। हवा से बातें करता हुआ हमारा जहाज अब हम तक यह संदेश पहुंचा रहा है, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बहुमुखी सैन्य परिवहन विमान है। यह अपनी सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताओं, मानवीय मिशनों और विशेष संचालन समर्थन के लिए जाना जाता है। सुपर हरक्यूलिस विमान अपनी उन्नत एवियोनिक्स और लंबी दूरी के साथ भारत की एयरलिफ्ट क्षमताओं को बढ़ाता है, जो रणनीतिक गतिशीलता, सैनिकों और कार्गो की तेजी से तैनाती में योगदान देता है। C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है, में शानदार असॉल्ट लैंडिंग क्षमताएं हैं, जिसका प्रदर्शन अभी आपने देखा। यह भारतीय वायुसेना को विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित डिप्लॉयमेंट और संचार सुरक्षा में मदद करने के लिए अपने परिसरबद्ध एयर स्ट्रिप से उत्कृष्ट करता है। Next in the sequence of events is an underslung operation by Chinook helicopters, also known as external load operations. This type of flying requires extensive training and skill. This kind of operation is also very useful in disaster relief and humanitarian assistance. Now the aircraft is on your right, 2 o'clock. You will see 2 heavy lift tandem rotor Chinook helicopters, call sign Hanuman, carrying 2 M777 guns of the Indian Army as underslung load, ready to be delivered into the battlefield. The helicopters are dispensing flares. घटना के क्रम में अब शिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक अंडरस्लंग ऑपरेशन है। बाहरी बार संचालन के रूप में प्रसिद्ध इस ऑपरेशन की उड़ान के लिए प्रशिक्षण, कौशल और जज्बे की आवश्यकता होती है। इस तरह के ऑपरेशन बहुत उपयोगी हैं और उसे मानवीय सहायता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दुर्गम क्षेत्रों में विमान से रसद वितरण को सक्षम बनाता है। The Chinook is a tandem rotor heavy lift helicopter that is in the inventory of Indian Air Force.
The Chinook possesses several means of loading various cargoes, including multiple doors across the fuselage, a wide loading ramp located at the rear of the fuselage, and a total of 3 external ventral cargo hooks to carry underslung loads. Chinook हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में हमारी तोपों का लगातार स्थान बदलने में मदद करता है, जिससे शत्रु को हमारी तोप के सही स्थान का कभी पता नहीं चलता। Chinook हेलीकॉप्टर दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी तोप को पहुंचाकर शत्रु को अचंभित कर देता है। With its robust twin-engine power, it effortlessly shoulders hefty payloads ranging from artillery to vehicle, both internally and externally, showcasing its maximum payload capacity. Its extended range and endurance grants it the freedom to traverse vast distances and maintain prolonged airtime, enhancing operational adaptability. The aircraft's modern avionics systems, featuring cockpit displays and advanced navigational tools, amplify situational awareness and mission efficacy to unprecedented levels. Chinooks provide strategic support by airlifting heavy construction equipment to the far reaches of Himalayas and played a crucial role in sustenance of operations in one of the biggest ever helicopter humanitarian relief and evacuation efforts undertaken under Operation Rahat. The Chinook's ability to carry large underslung loads has been of significant value in relief operations in the aftermath of natural disasters. Since the type's inception, the Chinook has carried out various secondary missions, including medical evacuation, disaster relief, search and rescue, aircraft recovery, firefighting, and heavy construction assistance. In February of 2020, the Indian Air Force started using Chinooks at theaters such as Ladakh and Siachen Glacier to assist Indian forces deployed at the Indian borders with China and Pakistan. On your screens, you can see the Chinook helicopters lowering the M777 guns. The M777 howitzer is a 155mm 39 caliber towed artillery gun and weighs just 4 tons, which makes them light enough to be airlifted underslung from Chinook helicopters. The gun, unlike traditional artillery systems, is ideal for quick transport owing to its weight. The weapon is easier to move on battlefield and quicker to set up than earlier guns. Chinook helicopter are a versatile component of airspace power. They can induct troops and equipment direct into action and extricate them on completion of tasks. Chinook helicopters are used in air-landed operations where the troops are landed near the objective, where they organize into combat units and move towards their objective. These helicopters enable rapid insertion and transfer of troops into forward locations. Advanced landing grounds and inter-valley troop transfer are a major component of a Chinook helicopter. The Chinook helicopter has successfully offloaded the guns, displaying how we undertake airborne operation, showcasing coordination between air and land elements of the armed forces. How both elements come together and ready to destroy any enemy who even dares to look at us. On the screen's position in front, you can see the live bird's eye view of the operations undertaken jointly by the forces, which is being transmitted by the RPA. Now the Chinook helicopters have completed their mission and are moving on to the next mission. वायुसेना और थल सेना की ये संयुक्त कार्रवाई देखकर एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति कही जा सकती है। पंख उनकी जरूरत नहीं, वो लोग जज्बों से हवाओं में हैं। इश्क किया है देश की मिट्टी से, जिंदगी सुपुर्द देश की वफाओं में है।
कोई जमी की पहरेदारी में जुटा है, कोई सलामत रखे है हमारा आसमां। सबका मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में सलामत रहे हिंदुस्तान। और अब थल सेना की एक टुकड़ी गन्स को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे और वहां से दुश्मन पर धड़ाधड़ गोलों की बौछार की जाएगी। हार्दिक नमन है भारतीय वायु वीरों का, धरती से ज्यादा गगन है इनको प्यारा। शत्रु देखेंगे अपने सीने पर हाथ रखकर भारत देश की वायु शक्ति का नजारा। In the next demonstration, we will give you an insight into the capability of Indian Air Force to carry out attacks by unmanned aerial vehicles called attack drones. This system will destroy the radar sight of the enemy, depicted by target number 16. It is an indigenous autonomous vertical takeoff and landing capable drone. It provides real-time feedback with respect to the accuracy of the hit. This drone is ideal to take on small targets and ensures low collateral damage. Electronic intelligence has provided fresh information that an enemy is tracking our movements through its radar, and so it has become imperative that we destroy this radar situated at target number 16 position in front of you. Look straight ahead, high, as the drone may go into dive anytime. The attack drone has already been fired and is now on the way to the target. Keep your eyes glued on the target as the attack drone may drop onto the target anytime, catching enemy by total surprise. तो भारतीय वायुसेना का ये वायु शक्ति अभियान, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वायु शक्ति 2024 फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन से इंडियन एयरफोर्स संदेश दे रहा है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना पूर्ण रूप से सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है। साथ ही वीरों की धरती राजस्थान में हमारे देश के रणबांकुरे अपना दमखम दिखा रहे हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में 121 विमान हिस्सा ले रहे हैं। इनमें फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। 72 फाइटर जेट, 5 परिवहन विमान, 44 हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। राफेल, जगुआर, मिराज, सुखोई, तेजस जैसे बड़े फाइटर जेट इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण ये अभ्यास और बड़ा संदेश देता हुआ ना सिर्फ अन्य मुल्कों को बल्कि देश की जनता को भी कि भारतीय वायुसेना अपने आप में सशक्त है, आत्मनिर्भर है। नई टेक्नोलॉजी से अब भरपूर हमें तमाम ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी आंखों देखी और आप जो इस वक्त महसूस कर रहे होंगे वहां पर जब राफेल की गड़गड़ाहट आसमान से हो रही होगी, जरा वो भी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इस वक्त पोखरण में हूँ, पाकिस्तान सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर। और ये जो पूरा जो इलाका जो पोखरण फायरिंग रेंज है तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का एरिया है, जहां पर जो भारतीय वायुसेना के जितने लड़ाकू विमान हैं, जितने मिसाइल हैं, जितने बम हैं, उनका लगातार जो है एक लाइव टेस्ट हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो भारतीय वायुसेना के जो सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, रफाल की बात करें, सुखोई की बात करें, MiG-21 की बात करें, तेजस की बात करें, उन सारे जो फाइटर जो उनसे जो मिसाइल जो हमारे दागे जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रफाल से जो है माइका जो है मिसाइल यहाँ पर दागे जा रहे हैं, तेजस से R-73 मिसाइल दागे जा रहे हैं। और सारे जो अपने हथियार है उनका कह सकते हैं कि उनकी तैयारियों को परखा जा रहा है। और जो मैसेज जो है पाकिस्तान को तो कम से कम दिया ही जा रहा है, जो हमारे देशवासियों जो देख रहे हैं उनको भी मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आप कम से कम उनके सिस्टम पर, भारतीय वायुसेना पर पूरा यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। देशवासियों के भारतीय वायुसेना के हाथों में जो पूरा देश जो है, देश की जो हवाई सीमा जो है पूरी तरह सुरक्षित है। और जब जब मौका आया है, भारतीय वायुसेना जो है अपनी जिम्मेदारियों से कहीं नहीं पीछे हटी। और जब जब जिस तरह का इस्तेमाल किया गया है, चाहे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी हो,
फाइटर रफाल की बात करें, चाहे तेजस की बात करें, जिससे से फ्लाई किया था और चीन के मूवमेंट को कह सकते हैं एक पूरी तरह से उसको कहते हैं रोक दिया था, एक सबक सिखाया था। उसी तरह जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान से आतंकी ने तो बालाकोट पे जो जैश के आतंकी कैंप थे उसको तबाह किया गया था। तो उन सारी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और पीछे अगर देखें तो एक क्या कह सकते हैं कि दुश्मन के इलाके की तरह बिल्कुल कुछ वैसा ही बनाया गया है कि कोई टैंक का काफिला कहीं गुजर रहा था, कहीं और इन ट्रिपों को जो एक एक करके जो तबाह किया गया था, जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर है, मिसाइल है, बॉम्ब है, ये भारतीय वायुसेना ने दिखाया कि उसकी तैयारी जो है किस कदर की है, उसके मिसाइल जो है कितने एक्यूरेसी के साथ, कितने सटीक निशाने के साथ फायर करते हैं। भारतीय वायुसेना ने यह भी दिखाया कि दुश्मन के इलाके में अगर पैरा ड्रॉप करनी हो, चाहे C-70 ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वो हमारे जो कमांडो जो है कैसे पैरा ड्रॉप करते हैं। इसी तरह आपको बताया जो चीनक जो ट्रांसपोर्ट जो है हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए जो है जो M777 टूब की बात है, उसको अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में लेके जाना हो तो कैसे उसको लेके मूव किया जाता है, कैसे उसकी पोजिशनिंग चेंज होती है। तो इन सारी चीज़ों को भारतीय वायुसेना ने यहाँ दिखाया और भरोसा जताने की कोशिश की कि देशवासियों के उनके हाथों में देश सुरक्षित है। और भारतीय वायुसेना यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा, जो भी नई नई तकनीक आ रही है, नई नई चुनौतियाँ आ रही है, उसको किस तरह से अडॉप्ट कर रही है और उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रही है। यह जो अभ्यास हो रहा है बल दिन के उजाले में भी हो रहा है, गोधली बेला में हो रहा है, जिसको डस्क जिसको कहते हैं, और रात के अंधेरे में भी हो रहा है। मतलब भारतीय वायुसेना के सामने अगर कभी चुनौती आती है, चाहे दिन के उजाले में आ जाए, चाहे गोधली बेला में, चाहे रात के अंधेरे में आ जाए, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर है, जो फाइटर है, वो सारी चुनौतियों को निपटने में पूरी तरह सक्षम है। और ये जो अभ्यास की बात करें, वायु शक्ति 2024 की बात करें, ये साल में 3 बार होता है। और उसके लिए एक कम से कम पोखरण जैसा जो रेंज जो इसलिए चुना गया है, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का इलाका है और यहाँ आबादी ना के बराबर है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में 40 से 50 टन गोला बारूद गिराए जाते हैं, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कितना जो आसपास के जहाँ जहाँ गिराए जा रहे हैं वहाँ तबाही का मंजर कैसा होता होगा, कैसा वहाँ बर्बादी होता होगा और कितने धमाके वहाँ पर होते हैं। तो ये सारे मतलब वायुसेना अपनी तैयारियों को परख रही है कि मौका पड़े तो वो चूकेगी नहीं और वो दुश्मन को जो भी जो टारगेट उसे दिया जाएगा उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जी बिल्कुल राजीव, और आपने जिस तरह जिक्र किया कि मौसम कोई भी हो, दिन का पहर कोई भी हो, भारतीय वायुसेना सक्षम है अपने आप में हर परिस्थिति में माकूल जवाब दुश्मन को देने के लिए। और इन जवाबों को देने के लिए राजीव टेक्नोलॉजी एक अपने आप में बड़ा रोल प्ले करती है और आपने पहले भी कई डिफेंस रिहर्सल्स आपने कवर किए हैं। अब 2024 में वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन, टेक्नोलॉजी का कितना एडवांसमेंट आपको नजर आ रहा है इस पूरे रिहर्सल, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर? देखिए बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है। कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना, हालांकि वायु शक्ति पहले भी होता रहा है, लेकिन जिस लार्ज स्केल में ये जो अभ्यास हो रहा है वो बहुत बड़ा है। जैसे पहली बार जो है रफाल जो लड़ाकू विमान है, उससे आप माइका जो मिसाइल है उसका लाइव फायरिंग जो है आप यहाँ सबके सामने देख पा रहे हैं। जो R-73 मिसाइल है जो F-16 में जिसका इस्तेमाल होता है, उसका आपको ध्यान में होगा कि जब जो विंग कमांडर अभिनंदन जो है जो क्लास के उस दौरान हुआ था और उस दौरान उनके जो जहाज पर जो फायरिंग किया गया था पाकिस्तानी F-16 से, वो R-73 मिसाइल था। उस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है जो हमारे तेजस लड़ाकू विमान है। तो और उसके बाद जहां अगर डिस्ट्रॉय करना है, अगर सामने की बात करें तो सामने जो कई जगहों पर आप देखेंगे जहां कुछ धुआं नजर आ रहा होगा, वो एनिमी कैंप जिसको बनाया गया था, कुछ एनिमी का ऑयल डिपो बनाया गया था, उसको तबाह किया जा रहा है। तो तबाह ऐसे नहीं किया जा रहा है। पहले आपको बता दें कि जगुआर जैसे जो दूसरे फाइटर जो हैं वो बाकायदा उस इलाके के पिक्चर लेते हैं, पूरा रेकी करते हैं और उसके बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी दूसरे फाइटर आके उसको तबाह करते हैं। तो यानी हर तरह की चीज़ों का यहाँ पर जो कह सकते हैं अभ्यास का जो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जब मौका मिले तो कोई भारतीय वायुसेना का जो लड़ाकू विमान है, चाहे हेलीकॉप्टर की बात करें, वो चूके नहीं। यहाँ पर प्रचंड जो है अटैक हेलीकॉप्टर है भारत का बना हुआ, उससे भी मिसाइल की फायरिंग की गई, गन से फायरिंग की गई। तो जितने सारे भारतीय वायुसेना के जो पोटेंट जो वेपन सिस्टम है, उन सब का यहाँ ट्रायल किया जाएगा, उन सब का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा और अपनी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। परीक्षण नहीं बल्कि यह भी किया जाएगा कि कितना सूट करता है,
ताकि जब मौका है, जैसे भारतीय वायुसेना को जब करीब पुलवामा आतंकी हमले के समय हमला होता है और उसके बाद भारतीय वायुसेना को कहा जाता है कि आप जो पाकिस्तान का जो बालाकोट का जो जैश का ट्रेनिंग कैंप है उसको आप तबाह कीजिए। उसके लिए लड़ाकू विमान को चुना जाता है, मिराज को चुना जाता है। जिस तरह से मिराज जो है LC क्रॉस किया, उसके बाद जो पाकिस्तान का जो बालाकोट का आतंकी कैंप उसको तबाह कर दिया और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी। तो उन सारी चीज़ों की जो आतंकी कैंप को तबाह किया वो वैसे नहीं तबाह किया, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के अब तो रफाल जैसे लड़ाकू विमान है जिनको कम से कम जो पाकिस्तान का आतंकी कैंप है उसको तबाह करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, LC क्रॉस करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने बेहतरीन मिसाइल हैं और इस अभ्यास की एक यह भी खासियत बताएं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो वेपन सिस्टम है, चाहे रडार की बात करें चाहे मिसाइल की बात करें, वो भारत में बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना कहीं ना कहीं ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि हमें अपने हथियारों पर ज़्यादा भरोसा है, ज़्यादा यकीन है। तेजस जिस तेजस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तेजस जिस तरह से मिसाइल तेज से फायरिंग हो रही है, जिस तरह का प्रचंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि अब भारतीय वायुसेना जो है धीरे धीरे पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रही है। कहीं ना कहीं यह भी देखने की बात है कि कल की तारीख में लड़ाई या कोई इस तरह की मुसीबत आती है तो हम अपने हथियारों पर भरोसा रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल रवीश, और ये भरोसा ही कायम करते हुए बिल्कुल राजीव, यही भरोसा कायम करते हुए भारतीय वायुसेना के विमान और हमारे संवाददाता लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर ही रही है और इसका संदेश भी दुनिया भर में जा रहा है। तमाम बड़े शख्सियतों की मौजूदगी भी यहाँ पर है। राजीव, प्रधानमंत्री का भी आगमन, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री भी शायद आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले भी इस तरह के लेकिन तमाम बड़े रिहर्सल्स वायुसेना के होते रहे हैं और आपने बताया कि इस बार एक बहुत बड़े स्केल पर और एक बहुत बड़े ग्राउंड पर इसको आयोजित किया जा रहा है। कितने करीब वायुसेना का कितना स्टाफ राजीव इस पूरे प्रदर्शन में कितना वायुसेना का स्टाफ जो है इस वक्त यूज हो रहा होगा? देखिए, अभ्यास बेशक जो है वायु शक्ति अभ्यास 2024 पोखरण में हो रहा है। अपने जो आसपास के एयर बेसेस की बात अगर करेंगे, जोधपुर की बात करें, चाहे जैसलमेर की बात करें, चाहे फलौदी की बात करें, वहाँ से तो फाइटर आ ही रहे हैं। बाकी दूसरे कई जगहों से जो फाइटर आ रहे हैं, चाहे MiG-29 की बात करें तो देश भर में, साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करें, गुजरात की बात करें, तो ये तकरीबन कह सकते हैं कि हर एयर बेस जो भारतीय वायुसेना का वो इसमें एक्टिव है। आप समझिए कि 77 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है इस लड़ाकू विमान में हिस्सा ले रहे हैं। एक लड़ाकू विमान अगर फाइटर के लिए किसी मिशन के लिए तैयार होता है तो उसको तैयार करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और जैसे वो लैंड करता है उसके बाद भी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं तैयारी में, जिसको कह सकते हैं। तो पूरा भारतीय वायुसेना का यहाँ पर अमला लगा हुआ है और भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि यहाँ पर थल सेना का भी सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा दिखाया गया कि जिस तरह से जो भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है चिनूक जो है वो फ्लाई करता है और किस तरह से जो M777 जो तोप है उसको हाई एल्टीट्यूड एरिया में लेके जाता है। यानी पोजीशन जो है एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से मूव कर सकता है और दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसी तरह से जो प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है उससे फायरिंग की गई। तो ये सबका बाकायदा दिखाया गया। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सीडीएस आए हुए हैं, जनरल अनिल चौहान आए हुए हैं, यहाँ पर नेवी चीफ जो है एडमिरल आर हरि कुमार आए हुए हैं, थल सेना प्रमुख चूंकि यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका में वो नहीं आए हुए हैं, तो बाकी तमाम जो बाहर से कई सारे जो फॉरेन डिग्निटी है वो यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। जो भारत की हवाई ताकत है उसको देख रहे हैं कि ये भारतीय वायुसेना के ये भी बता दे कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो वायुसेना जो है भारतीय वायुसेना को कहा जाता है। ये अलग बात है कि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमान जो है कुछ पुराने भी हैं और नए भी हैं। एक कह सकते हैं कि दोनों के एक अच्छा संगम बन चुका है और जो पुराने लड़ाकू विमान है उसकी कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है अपग्रेड करके लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है ताकि जिस तरह की चुनौतियां हैं उसको जो है बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से सामना कर सके। जी साथ ही राजीव, इसमें जो इंडिया मेड जो वेपन्स है, इंडिया मेड जो पार्ट्स हैं वायु सेना के हमारे तमाम विमानों के, उसका भी इस बार जो है दबदबा देखने को मिल रहा है। जो मेड इन इंडिया की थीम पर भारत सरकार लगातार जोर देती रही है, डिफेंस के अंदर भी खास तौर से मेक इन इंडिया की बात उठी और उस पर एक बड़े हद तक काम भी हुआ है।
तो अगर उस रूप में अगर हम देखें कि स्वावलंबी भारत और स्वदेशी जो वेपन्स हैं और जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका अभी जोर कितना देखने को मिल रहा है, अगर आप बता पाएं उसके बारे में। देखिए, बहुत ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है। जो हमारा तेजस जो लड़ाकू विमान है, तेजस इसलिए बेहतर नहीं माना जाता है कि भारत में बना हुआ है, बल्कि अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है। मतलब हवाई हमले में अगर डॉग फाइट की बात होती है, आमने सामने लड़ाई की बात होती है, तो ऐसे फाइटर जो लड़ाकू विमान बहुत उपयोगी साबित होते हैं। उसका जो इंजन लगा हुआ है 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है। अगर जहाज की बात करें तो उसका वेट है 6500 किलो का, लेकिन हथियार के साथ 13500 किलो वेट कैरी कर सकता है। 8 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। इसी तरह जो प्रचंड हमारा अटैक हेलीकॉप्टर जो देश में बना हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश सिस्टम है, अस्त्र मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी जिसको पायलट अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, 100 से 150-200 किलोमीटर दूर है, उसको भी हिट कर सकता है। तो हर लिहाज से जो है अब भारतीय सेना जो है आत्मनिर्भर हो रही है। ये थल सेना की केवल बात नहीं है, नौसेना की बात की तो नौसेना के 60 से 70% जो युद्धपोत जो है वो अब भारत में ही बन रहे हैं। ऐसे वेपन सिस्टम नौसेना केवल बाहर से मंगाती है जो हिंदुस्तान में नहीं बनता है। जो हमारा विक्रांत है वो हिंदुस्तान में बना है। दुनिया में 5 से 6 देश हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो दुनिया में केवल 5-6 देश हैं जो इस तरह के लड़ाकू विमान बना सकते हैं। अब हमारा जो C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है अब वो भारत में बनता है, हिंदुस्तान बना रहा है। ये जो फाइटर है जो हमारा तेजस है, या फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें या प्रचंड की बात करें, दुनिया के कई देश इसे खरीदना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही बना हुआ इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ध्रुव तो कई देश बाकायदा खरीद चुके हैं, उसका ले चुके हैं। तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का जो डंका जो है अब पूरी दुनिया में बज रहा है। जी बिल्कुल, और भारत का डंका ये सदी भी मानी जा रही है कि एशिया की सदी है, और एशिया की सदी में भी भारत लीड करता हुआ नजर आएगा सारी दुनिया को। और उसी का नज़ारा हम लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और राजीव तो आंखों से अपनी खुद वहीं पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना एक इतिहास रचती हुई और भारत की ताकत के अंदर, भारत के मजबूत भविष्य के अंदर एक बड़ा स्तंभ इन तरह की तमाम एक्सरसाइजेज से क्रिएट होता है। राजीव, कितना असर इसका वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर कितना असर इस बात का पड़ता है जब एक देश की वायुसेना इस तरह के बड़े अभ्यास करती है जिसके अंदर उनके डिफेंस स्टाफ के जो सभी चीफ हैं उनकी मौजूदगी होती है ऐसे रिहर्सल्स के अंदर, इस तरह के एक्सरसाइजेस के अंदर, तो कितना बड़ा संदेश इसका दुनिया भर में भी जाता है? देखिए, इसका संदेश दुनिया भर में जा रहा है, और साथ से जो पड़ोसी के वो मुल्क जो हमारे एडवर्सरी हैं उनको सीधा संदेश जा रहा है। मतलब भारत अगर कोई बात करता है तो हवा में तीर नहीं छोड़ रहा है, बल्कि बिल्कुल निशाने पर सटीक छोड़ रहा है। उसको देखने की जरूरत है। यह जो अभ्यास हो रहा है जिसका भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक है यहाँ पर, ये गुदली बेला कहलाता है। इसके बाद थोड़े बाद फिर से अभ्यास शुरू हो जाएगा। ये दुनिया कोई भी देश जो है इसको लाइव देख सकता है, और इसको अपने आंखों से देखने के लिए आप अगर दाहिने ये बाईं और हमारा देखें तो दुनिया के कई देशों के यहाँ नुमाइंदे जो डिफेंस अटैची जो हिंदुस्तान में है प्रतिनिधि, वो यहाँ पर आए, वो देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कितनी बढ़ चली है। अगर कोई भी दुश्मन देश जो है भारत के ऊपर आंख उठाता है तो उसको कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो हवाई ताकत है उनको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उनको एक चुनौती, एक जवाब देने के लिए है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जब NDTV के साथ बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की चुनौती आने पर भारतीय वायुसेना सबसे पहले रिस्पांस करेगी, और यह जो रिस्पांस जो होगा डिसाइसिव होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना जो कम से कम ये जो इलाका देख रहा है, लेकिन जो जहाज की जो फाइटिंग की जो रेंज जो है कितना आगे बढ़ जाता है। और हमारे पास अब तो एयर टू एयर रिफ्यूलर भी है, यानी जो फाइटर जो है उनको हवा में आप ईंधन भर सकते हैं, और जब हवा में ईंधन भरेंगे तो उसका रेंज कितना बढ़ जाता है। आप इससे कि भारत का फाइटर जो है रफाल जो है अभ्यास करने के लिए गया, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ, एयर टू रिफ्यूलर की जरूरत थी तो आसमान में भर दिया, तो इसके रेंज बढ़ जाते हैं। जो मिसाइल जो इसमें लगे हुए हैं, जो बॉम्ब जो लगे हुए, जो रॉकेट जो है, तो इससे एक क्षमता तो बढ़ती है, देशवासियों को भरोसा तो जगता है भारतीय वायुसेना पर। लेकिन जो एडवर्सरी जो हमारे चाहे चीन की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें, तो वो
कुछ भी करने से पहले आप कम से कम 10 बार सोचेंगे बिल्कुल। कि भारतीय वायुसेना जो है अब कितनी ताकतवर हो चली है। एक बिल्कुल नई कह सकते कि भारतीय वायुसेना हो चाहिए, जिसके पास साइबर हमले को झेल सकती है, यूएवी, ड्रोन, हर मामले में जो नए नए दौर के जो हथियार है उसका सामना करने में सक्षम है। और इसे घबराती नहीं है, थ्रेट की तरह नहीं लेती है, बल्कि इसे चुनौती के तौर पर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और लगातार हम आपके माध्यम से तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये बड़ा एक प्रदर्शन, बड़ी एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना की ओर से चल रही है और हमारे संवाददाता राजीव रंजन लगातार इसको कवर कर रहे हैं। उनके कैमरे से आप लोग ये तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के निकट इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति 2024 चल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी पोखरण फायरिंग रेंज में राफेल जैसे भारतीय अन्य विमान गरज रहे हैं। सुखोई गरज रहा है, चिनूक है वहां पर। राफेल विमान से दागे गए 2200 किलो बम राफेल विमान से दागने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इस पूरे अभ्यास में फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों की मौजूदगी है। हेलीकॉप्टर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां भी अपना परिचय दे रही हैं अपनी क्षमताओं का। भारतीय वायुसेना के गरुण बल के जवान विशेष अभियानों में अपनी युद्ध क्षमता का वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सरहद पर वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के गवाह बन रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हरि कुमार और चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी भी इसमें शामिल हैं। करीब 5 बजे लगभग ये पूरा एक्सरसाइज शुरू हुई थी वायु शक्ति 2024, और दिन से लेकर रात तक अभी वायुसेना का अभ्यास चलेगा। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान हो या चीन, हर कोई इस ओर नज़र लगाए बैठा है और भारत की वायुसेना की इस पराक्रम से, इस शक्ति से भय खाए बैठा है। तो दुश्मनों को दहशत में डालने वाला भारतीय वायुसेना का ये दमदार शक्ति प्रदर्शन जैसलमेर की पोखरण रेंज से सीधी तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। सुपरसोनिक धमाके का प्रदर्शन वहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। तो दुनिया देख रही है भारत की इस दमदार ताकत को, जो भारतीय वायुसेना के रणबांकुरे अपने कौशल के माध्यम से। और ये देखिए भारतीय वायुसेना का पराक्रम, दमदार बमबारी और बम गोला बारूद से इस वक्त जैसलमेर का पोखरण रेंज दहल रहा है। पोखरण फायरिंग रेंज में राफेल की दहाड़ भी सुनाई दे रही है, सुखोई भी गरज रहा है और इन सब की आवाज पूरी दुनिया में सीधे तौर पर जा रही है। मिराज, जगुआर, राफेल का शक्ति प्रदर्शन और इसके साथ साथ अन्य भी भारतीय वायुसेना में मौजूद विमान अपना परिक्रम दिखा रहे हैं, अपनी युद्ध कौशल दिखा रहे हैं, अपनी क्षमता दिखा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की शक्ति का, भारतीय वायुसेना के पराक्रम का। तो भारतीय वायुसेना के पराक्रम के ये पूरा दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।